Good evening. So let's start with today's topic, that is aerobic respiration. So for aerobic respiration to take place, within mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transformed or transported from the cytoplasm into the mitochondria, right? So first ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, so that glycolysis which occurs in cytoplasm, while at the end of glycolysis the product, that is pyruvate, enters to mitochondria for further oxidation, right? तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये जो पायरुवेट है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया. दैट मीन्स दैट TCA cycle occurs in matrix of mitochondria. Now, the crucial events in aerobic respiration are, अच्छा, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कौन कौन सी इवेंट्स होनी चाहिए? सो फर्स्ट, the complete oxidation of pyruvate, complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all the hydrogen atoms, leaving 3 molecule of CO2. आप देखोगे, मैं अभी आपको TCA साइकिल में दिखाऊंगी कि जब भी TCA साइकिल होता है तो हाइड्रोजन रिमूव होता है और 3 स्टेप पे CO2 रिलीज होते हैं. सेकंड, the passing on the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of
एटीपी, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, जो भी, राइट, जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। फिर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास होते किसके तक, कहां तक, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक। और साथ में कौन सी प्रोसेस होती है, एटीपी सिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि आज हाइड्रोजन पास हुआ, कल इलेक्ट्रॉन पास हुआ, फिर एटीपी सिंथेसिस, ऐसा नहीं। ऑल दिस प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली, and we know that occurs by ETS and by oxidative phosphorylation, right? Now remember that TCA cycle, which occurs in matrix of mitochondria, while ETS, which occurs in the inner membrane of mitochondria, राइट। कौन सी प्रोसेस कहां पे होती है ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड थिंग, दैट ग्लाइकोलिसिस which occurs in cytosol, that is cytoplasm। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड। नाउ इन क्रेब्स cycle, actually that pyruvic acid unites with CoA in the presence of NAD, मतलब कि NAD चाहिए, और क्या फॉर्म होता है, एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस। एक्चुअली दिस इज इंटरमीडिएट स्टेप, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, and this occurs in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase, and उसके लिए क्या चाहिए, Mg+2, ठीक है, राइट। ओके, तो ये कॉमन सेंस हो गई कि ये भाई ये दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन glycolysis and Krebs cycle. This step is connecting link between glycolysis and Krebs cycle. So you can understand that due to that glycolysis, you are having pyruvic acid, and that pyruvic acid will enter into Krebs cycle, right? But that acetyl CoA, right? It is connecting link, ठीक है। तो connect acetyl CoA is a connecting link between glycolysis and Krebs cycle, right? So remember that during this process, two molecules of NADH2 are produced by 2 molecule of pyruvic acid। देखो ये इंटरमीडिएट लिंक है, बीच वाला ये स्टेप है, राइट। ओके, एंड नाउ दिस acetyl CoA enters to TCA cycle। समझ में आया, acetyl CoA फिर TCA साइकिल में एंटर होता है, क्लियर। ओके, अब क्या होता है इसके स्टेप्स, तो स्टेप्स में याद रखना है कि सबसे पहले पायरुवेट होता है, और ये पायरुवेट उसका डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन होता है,
राइट, पायरुवेट 3 कार्बन, जब डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या फॉर्म होगा, एसीटेट, कितने कार्बन, 2 कार्बन। जो डिहाइड्रोजनेशन हुआ, ये जो 2H प्लस है ये कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD, and it will convert it into NADH2. Now this acetate unites with coenzyme A and it will convert it into acetyl coenzyme A, which is again 2 carbon molecule. Now actually here that acetyl CoA, which is 2 carbon, unite with OAA, that is oxaloacetate or oxaloacetic acid, which is 4 carbon compound, and the first product gain is citric acid, which is 6 carbon compound. This citric acid is converted into cis-aconitic acid, which is again 6 carbon compound, which is converted into isocitric acid, which is 6 carbon compound. Now isocitric acid, its decarboxylation occurs, and जब भी decarboxylation होता है तो 5 carbon compound मिलता है, that is alpha keto glutaric acid, which is 5 carbon compound. Again उसका decarboxylation हुआ and now 5 carbon में से 1 carbon गया, तो अब मिलेगा succinyl CoA, which is 4 carbon. succinyl CoA में से मिलेगा succinate, again 4 carbon. फिर उसमें से बनेगा fumarate, then malate and oxaloacetate. सक्सिनेट उसी को बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट जिसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड, विच इज ऑल्सो 4 कार्बन, मैलेट मैलिक एसिड, अगेन 4 कार्बन, एंड oxaloacetic acid, which is again 4 carbon compound. तो ये तो जस्ट आपको हाईलाइट दी, राइट, कि भाई इतने स्टेप्स होते हैं. अब उसको याद कैसे रखना है, इसका डिटेलिंग तो बाद में देखेंगे, बट पहले क्वेश्चन आता है कि उसको याद कैसे रखेंगे. तो चलो मेरे पास इसकी ट्रिक है. तो सबसे पहले अपने कंपाउंड लिख दो. सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, सिस एकोनिटिक एसिड 6 कार्बन, आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, then alpha keto glutaric acid 5 carbon, then succinyl CoA 4 carbon, succinate 4 carbon, fumarate 4 carbon, malate 4 carbon, oxaloacetic acid OAA, which is 4 carbon. अब कैसे याद रखना है उसको, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया is
ओके, सो send fund by money order. C citric acid cricket, C cis aconitic acid, I isocitric acid, okay, alpha ketoglutric acid, so succinyl CoA, S succinate, F fumarate, M malate, O oxaloacetate. राइट, तो ये याद रखने की इजी ट्रिक है. ठीक है, चलो अब वापस यही साइकिल थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहले पाइरुवेट, उसका डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन होता है. डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि CO2 रिमूवल, और डीहाइड्रोजिनेशन होता है ये 2H+ कौन लेता है, NAD, और किसमें कन्वर्ट होता है, NADH2. जैसे पाइरुवेट कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो उसमें से बनता है एसीटेट 2 कार्बन कंपाउंड. अब एसीटेट यूनाइट होता है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, again it is 2 carbon. Now this acetyl CoA unite with oxaloacetic acid which is already present in matrix of mitochondria, oxaloacetate और oxaloacetic acid which is 4 कार्बन. एक्चुअली यही टाइम में क्या होता है, कोई रिमूव होता है और वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है. राइट, तो बनता है citric acid. This citric acid is 6 carbon compound. The first product again is citric acid. That's why this pathway is known as a citric acid cycle. Right? ये पाथवे को क्या बोलते हैं, citric acid cycle. From the name of scientist Hans Krebs, this is known as a Krebs cycle. ओके, चलो अब ये समझ में आ गया कि पाइरुवेट में से निकलता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, तो बनता है एसीटेट. अब एसीटेट कहाँ पे बना है, अभी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में तो कोएंजाइम बहुत सारे होते हैं. तो साइटोप्लाज्म में जो कोएंजाइम ए था वो यूनाइट हुआ एसीटेट के साथ, और क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए. फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए यूनाइट होता है किसके साथ, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ, और क्या बनता है, साइट्रिक एसिड which is 6 carbon compound. This citric acid is converted into cis aconitic acid
which is also 6 carbon compound and which is converted into isocitric acid, which is also 6 carbon compound. Now this isocitric acid, its decarboxylation occur and dehydrogenation occur. These two H plus are accepted by hydrogen acceptor molecule NAD and is converted into NADH2. As CO2 is removed, so now this 6 carbon compound is converted into 5 carbon compound alpha keto glutaric acid, which is 5 carbon compound. Now again, at that step अल्फा केजी अगेन उसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड साइमल्टेनियसली डिहाइड्रोजिनेशन. डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो क्या रिमूव होगा, CO2, एंड डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, क्या रिलीज होगा, 2H plus, and these 2H plus are accepted by hydrogen acceptor molecule NAD and is converted into NADH2. And what is formed? So succinyl CoA, which is 4 carbon compound. Now succinyl CoA is converted into succinate. एक्चुअली यही टाइम में क्या होता है, सो दैट GDP plus P unite and forms GTP, guanidine ट्राइफॉस्फेट, और GTP में से जो फॉस्फेट रिमूव हुआ, ये फॉस्फेट यूज होगा किसमें से, ADP plus P में से क्या बनाने में, ATP बनाने में, राइट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, राइट. मतलब कि ADP में से क्या बना, ATP बना. समझ में आया. सक्सिनेट, उसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ और क्या बना, फ्यूमरेट और फ्यूमेरिक एसिड, विच आर 4 कार्बन कंपाउंड. अब याद रखना, जब भी सक्सिनेट में से फ्यूमरेट बनता है वो टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और साथ में डिहाइड्रोजिनेशन होता है. ये जो 2H प्लस रिलीज हुआ, क्या होगा, FAD, उसमें से क्या बनेगा, FADH2. FAD में से क्या बनेगा, FADH2. अब फ्यूमरेट, उसमें से क्या बनेगा, मेलेट या मैलिक एसिड, विच इज 4 कार्बन कंपाउंड. ये जो मेलेट है उसका अगेन डिहाइड्रोजिनेशन होता है. ये 2H प्लस कौन लेता है, NAD, और किसमें कन्वर्ट होता है, NADH2. सो आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट क्रेब्स साइकिल हो गई. क्रेब्स साइकिल ड्रॉ करने के लिए यहां पे ये साइड पे 4 पॉइंट बनाओ, एक सेंटर में सक्सिनाइल कोए और ये साइड पे 4 पॉइंट, राइट. ऐसे करके आप साइकिल ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. अब सेकंड थिंग, आप देख रहे हो कि ये पूरे एंटायर साइकिल में 1 2 3 4 5 जगह पे 2H प्लस रिलीज होते हैं, बट 1 2 3 4
4 प्लेसेस वहां पे है जहां पे 2H प्लस कौन लेता है, NAD, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH2। और जब भी फ्यूमरेट बने उससे पहले FADH2 रिलीज होता है, याद रखना, फ्यूमरेट से पहले क्या रिलीज होता है, FADH2। ये खास ध्यान रखना है, फ्यूमरेट FADH2। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे 1, 2 एंड 3 प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे CO2 रिलीज होता है और 2 प्लेसेस पे H2O ऐड होता है, राइट। ओके, अब क्या ध्यान रखना है, तो पायरुवेट में से एसिटाइल को एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है सेल साइटोसोल में होती है, तो एक्चुअली एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है। सो एक्चुअली रियल क्रेब्स साइकिल बिगिंस फ्रॉम एसिटाइल कोए। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो भी ये कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब कि ये जो भी एसिड्स है, साइट्रिक एसिड, सिस इकोनिटिक, आइसोसाइट्रिक एसिड, ये सारे कार्बनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 होते हैं। COOH ग्रुप कितने होते हैं, 3। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ TCA साइकिल, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, राइट। इसको क्या बोलते हैं, TCA साइकिल। ठीक है, तो आपको ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच भी कनेक्टिंग लिंक पूछे तो एसिटाइल कोए, रियल क्रेब्स साइकिल पूछे तो एसिटाइल को ए से पूछ आएगा, और अगर पायरुवेट से पूछे तो आप कैलकुलेशन यहां से करोगे। सेकंड थिंग याद रखना है कि एक्चुअली ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस वी आर हैविंग 2 पायरुविक एसिड, तो आपने यहाँ पे ये जो साइकिल ड्रॉ किया है दैट इज फॉर ओनली 1 पायरुविक एसिड। एक्चुअली वी आर हैविंग 2 पायरुविक एसिड, तो ये साइकिल डबल बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। व्हाई, बिकॉज ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर, तो ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप बहुत ही ध्यान में रखना है। ठीक है, पायरुवेट उसमें से डी हाइड्रोजिनेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन होके बनता है एसीटेट। ये 2H प्लस NAD लेता है, एसीटेट यूनाइट्स विद कोएंजाइम में एंड क्या बनाएगा, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए यूनाइट्स विद ऑक्जेलो एसिटेट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड विच इज 6 कार्बन कंपाउंड। The first stable product is citric acid. That's why this pathway is known as a citric acid cycle. Citric acid is converted into cis-aconitic acid, which is again 6 carbon compound, which is converted into isocitric acid, which is 6 carbon compound. Now decarboxylation and dehydrogenation of isocitric acid occurs and it is converted into 5 carbon alpha ketoglutric acid. That 2H plus are accepted by hydrogen acceptor molecule NAD and which is converted into NADH2. Now again alpha ketoglutric acid again discarbonylation and dehydrogenation occurs. These 2H plus are accepted by NAD and is converted into NADH2. And what is formed? Succinyl CoA which is 4 carbon. आप देख सकते हो ये 6 कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो 5 कार्बन में से डी कार्बोक्सिलेशन तो 4 कार्बन। देखो 6 कार्बन में से 1 कार्बन रिमूव हो गया तो 5 कार्बन में से 1 कार्बन रिमूव हो गया तो 4 कार्बन। अब सक्सिनाल कोई ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में। क्यों, और ये टाइम पे क्या होता है, GDP ग्वानिडीन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट ऐड होता है तो क्या बना, ग्वानिडीन ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये GTP में से अगेन फॉस्फेट लेता है कौन, ADP, और क्या बनाता है ATP। तो अब देखो एंटायर क्रेब्स साइकिल में एक यही स्टेप ऐसा है कि जिसमें ADP में से ATP बनता है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। सक्सिनल कोई में से डिहाइड्रोजिनेशन होता है और क्या बनता है, फ्यूमरेट। जब भी याद रखो F फ्यूमरेट बने तब FADH2 बने। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना, फ्यूमरेट बने तब भी FADH2 बने। फ्यूमरेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट और मैलिक एसिड,
राइट, एंड मैलेट अगेन उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है और क्या बनता है, ऑक्जेलो एसीटेट और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो रिफॉर्म हो गया। राइट, तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि पायरुवेट जब एंटर होता है तो 1 2 3 4 5 5 जगह पे 2s प्लस रिलीज होता है, और एसिटल को ऐसे पूछे तो 4 जगह पे, पायरुवेट से पूछे तो 1 2 3 4 4 जगह पे NADH2 बनता है, और अगर एसिटल को ऐसे पूछे तो 1 2 एंड 3 एट 3 प्लेसेस NADH2 फॉर्म होता है। राइट, तो ये एकदम कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। तो चलो इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझा दूं। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 पायरुवेट, राइट, तो मैं आपको बोल दूं कि NADH2 प्रोड्यूस्ड, NADH2 कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हुए, तो मैं स्टेप लिख रही हूं, पायरुवेट टू एसीटेट आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड अल्फा Kg2 succinyl CoA and malate to oxaloacetate, and FADH2 produced, so succinate to fumarate, that is fumaric acid। क्लियर यहां तक का? ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले NADH2, कितने NADH2, 1 2 3 4 NADH2। अब हमें पता है कि भाई 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। मैंने ये सीक्रेट बोला है आपको, क्योंकि जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो 1 NADH2 में से 3 ATP मिलता है। सो 4 NADH2 में से कितने, तो 3 into 4 दैट इज 12 ATP बाय NADH2। चलो अब FADH2, कितने FADH2, 1 FADH2। हमें फॉर्मूला पता है, 1 FADH2 is equal to 2 ATP, राइट। चलो अब सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन, सबस्ट्रेट लेवल मतलब कि ADP में से ATP, तो 1 ATP, ठीक है। अब देखो ये तो 1 पायरुवेट में से था, सो फ्रॉम 2 पायरुवेट, चलो NADH2 कितने हो जाएंगे, डबल, दैट इज 24 ATP। FADH2 डबल हो जाएंगे, दैट इज 4 ATP, और सबस्ट्रेट लेवल वो भी डबल, दैट इज 2 ATP। क्लियर? ओके, सो चलो फाइनल कैलकुलेशन फ्रॉम 1 पायरुवेट ATP प्रोडक्शन, चलो सबस्ट्रेट लेवल 1 ATP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
12 plus 2, 14 ATP. 12 plus 2. So total 15 ATP. So from 2-pyruvate, 30 ATP are produced by TCA cycle. सही बात है ना? TCA cycle के कितने? 30 ATP. अब आपको पता है 30 ATP by TCA, 8 ATP by glycolysis. तो टोटल 38 ATP. सो टोटल ATP प्रोडक्शन समझ में आया? कितना? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. क्लियर? ओके. अच्छा, यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या. तो सबस्ट्रेट लेवल पता है ना, जहां पे एडीपी में से एटीपी बनता है. और ये एटीपी प्रोडक्शन कहां पे हुआ? तो ये एटीपी प्रोडक्शन हुआ फ्रॉम सक्सिनल कोए टू सक्सीनेट. राइट? सक्सिनल कोए में से जब सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ तो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन हुआ. चलो, अब यही चीज अगर आपको पूछे फ्रॉम एसिटाइल कोए, एक्चुअली दिस इज रियल TCA साइकिल. एसिटाइल कोए से पूछे, सो एसिटाइल कोए से आप देखो, आपको पता है 3 NADH2 produced, that is 3 into 3 ATP, because we know that 1 NADH2 is equal to 3 ATP. Right? तो 3 3s are 9 ATP. अब एसिटाइल कोए से पूछे तो आपको पता है कि कितने FADH2 बनेंगे? 1 FADH2. As we know that 1 FADH2 is equal to 2 ATP. So 1 into 2 ATP, that is 2 ATP. और सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन पूछे. अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल मतलब याद रखना एडीपी में से एटीपी. और ये कौन से स्टेप में होता है? फ्रॉम सक्सिनाइल को ए टू सक्सीनेट. राइट? तो वहां पे कितना एटीपी? 1 ATP. तो 9 plus 2 plus 1, that is 12 ATP. So from 2 acetyl CoA, 24 ATP are produced. CoA, 24 ATP are. ओके, क्लियर यहां तक का? ओके, चलो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए सम पूछती हूं. फ्रॉम 1 pyruvate, how many ATP are produced by oxidative phosphorylation and by substrate level
phosphorylation and same for acetyl CoA। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। हमने जो भी कैलकुलेशन की बस यही दिमाग में याद रखनी है। आपको पहले किससे पूछा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पूछा है, कहां से पूछा है? 1 पायरुवेट 1 एसिटाइल कोए। अब देखो NaDH2 पूछा है पहले तो देखो पायरुवेट से काउंट करो तो 1 2 3 4, 4 जगह पे NaDH2 एंड 1 जगह पे FADH2। बट सेम चीज जब एसिटाइल कोए से पूछे तो 1 2 3 NaDH2 एंड 1 FADH2 आएगा, क्योंकि जब पायरुवेट से पूछे तो 2H प्लस एक एडिशनल होता है, एसिटाइल कोए से पूछे तो एक 2H प्लस कम होता है। मतलब कि पायरुवेट से एक NaDH2 ज्यादा, एसिटाइल कोए से एक NaDH2 कम। ठीक है, तो जब पायरुवेट से पूछे तो 1 2 3 4 NaDH2 एंड 1 FADH2, और एसिटाइल कोए से 3 NaDH2 1 2 3 NaDH2 and 1 FADH2. So from 1 pyruvate 4 NaDH2, यहां पे आएंगे 3 NaDH2 and 1 FADH2 1 FADH2, right? So 4 into 3 ATP, that is 12. 1 into 2 ATP, 1 FADH2 is equal to 2 ATP, that is 2. So total 14. और एसिटाइल के उससे पूछे तो 3 into 3 ATP, that is 9 ATP। देखो 1 NaDH2 is equal to 3 ATP, तो 3 NaDH2 के लिए कितने? 9, और 1 FADH2 is equal to 2 ATP, so 1 into 2 is equal to 2 ATP, so total 11 ATP, और यहाँ पे 14। ठीक है, चलो अब दोनों जगह पे पूछा है सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन। ऑक्सीडेटिव तो हो गया, अब देखो 11 में 3 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन, तो सबस्ट्रेट लेवल तो पता है ना, एक ही जगह पे होता है। कहां पे? सक्सिनाइल CoA2 सक्सीनेट। ठीक है ना, तो यहां पे भी एक एटीपी और यहां पे भी एक एटीपी फ्रॉम pyruvic acid, and this is from acetyl CoA. क्लियर यहां तक का? चलो और एक पूछ लेती हूं। When alpha Kg enters to TCA cycle, how many ATP are produced? अब देखो कहां से पूछा है? अल्फा केजी से। तो देखो अल्फा केजी मतलब यहां से स्टार्ट करना है,
अब यहां से लेके बस OA तक जाना है। तो अल्फा KG से स्टार्ट करें तो 1 2 3 जगह पे 2H प्लस रिलीज होता है। उसमें 2 जगह पे कौन लेता है? NAD। एक जगह पे क्या रिलीज हुआ? FAD। और एक जगह पे सबस्ट्रेट लेवल ATP। अल्फा KG 1 मॉलिक्यूल पूछे तो हम लिखेंगे 2 NADH2 एंड 1 FADH2 एंड 1 सबस्ट्रेट लेवल, क्योंकि आपको कहाँ तक साइकिल रन करना है? OAA तक। क्लियर? तो अल्फा KG से पूछे तो यहां तक साइकिल करनी होगी। सो अल्फा KG से पूछा है तो आपने देख लिया कि फ्रॉम अल्फा KG टू OAA टू NADH2 1 FADH2 and 1 substrate level ATP production occurs. 2 NADH2, that is 2 into 3 ATP, that is 6 ATP. 1 FADH2 1 is equal to 2 ATP, that is 2 ATP, and substrate level 1 ATP. So total 9 ATP. ओके, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो जाए। फ्रॉम 20 pyruvate 10 pyruvate further oxidized. So during that, how many ATP are produced? ओके, अब देखो यहां पे क्या पूछा है? फ्रॉम 20 पायरुवेट 10 पायरुवेट, मतलब कि भले ही हमारे पास 20 पायरुवेट है बट फर्दर ऑक्सीडेशन कितने पायरुवेट का होता है? 10 पायरुवेट का। चलो पहले एक पायरुवेट में से कैलकुलेशन कर ले। एक पायरुवेट पता है ना आपको? फिर से साइकिल याद करो। 1 पायरुवेट से कैलकुलेशन करोगे तो 1 2 3 4 NADH2 1 FADH2 एंड 1 सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। बस ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि पायरुवेट में से क्या और एसिटाइल CoA में से क्या। सो 1 पायरुवेट में से 4 NADH2 1 FADH2 and 1 ATP substrate level. So 4 into 3 ATP 1 and 2 ATP or 1 ATP substrate level, that is 12 ATP 1 2 are 2 ATP and 1 ATP, so total 15 ATP. अब देखो from 1 pyruvate 15 ATP are produced. So from 10 pyruvate how much ATP are produced? तो 15 into 10, that is 150 ATP. अब याद रखना बच्चों, ये जो भी NADH2 और FADH2 से जो भी ATP हमें मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होती है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होती है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो NADH2 और FADH2 का माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जो 2H प्लस रिलीज हुए हैं उसका माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचना जरूरी है, राइट? क्योंकि जब तक ये 2H प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे
तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। अब एक अलग सा क्वेश्चन ले लेती हूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 10 molecule of glucose occurs, but 2H plus produced in cytoplasm will not enter to mitochondria. So number of ATP produced. बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अकर, मतलब कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट दैट 2H प्लस प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म विल नॉट एंटर टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में जो 2H प्लस रिलीज हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा रहा है। ओके, बट पाइरुवेट तो माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। तो चलो पहले टीसीए साइकिल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टीसीए साइकिल 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स 20 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब हमें पता है कि 1 पायरुविक एसिड उसमें से कितने एटीपी, 15 एटीपी। So from 20 pyruvic acid, 15 into 20, that is 300 ATP. कभी कभी गलती में यहाँ पे 2 मतलब कि 1 पायरुविक एसिड से 15, बट कभी कभी 2 पायरुविक एसिड के लिए रखे तो याद रखना 30, क्योंकि 1 ग्लूकोज में से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड होते हैं और 2 पायरुविक एसिड होते तो कितना होता है 30। तो यहाँ पे गलतियां हो जाती है जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो आप गलती मत करना। 1 पायरुविक एसिड में से 15 एटीपी, 2 पायरुविक एसिड मतलब कि 1 ग्लूकोज हो तो 30 एटीपी, ठीक है। चलो अब बारी आती है ग्लाइकोलिसिस। टेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, अच्छा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, उसमें से सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन कितना है हमें पता है ना, 2 एटीपी, क्योंकि 2 यूज हो जाते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कितने एटीपी, तो देखो यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 2 NADH2 बनेंगे, बट ये जो 2H प्लस है विच इज प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म will not enter to mitochondria. तो no ATP production by oxidative phosphorylation, that is no ATP by ETS, क्योंकि जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो रहा है। सो बाय ग्लाइकोलिसिस 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज will gives 10 into 2, that is 20 ATP। समझ में आया? तो टीसीए के थ्रू कितने 300, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 20, तो टोटल 320 ATP। क्लियर यहां तक का? राइट। तो कैलकुलेशन कुछ भी पूछे बट बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कहां से कहां काउंट करना है। ओके, वेरी गुड।
cycle which starts with the condensation of acetyl group with OAA oxaloacetate and water to yield citric acid, and this reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthetase molecule of coenzyme A is released. तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम याद रखना, और क्या रिलीज हो रहा है? कोएंजाइम ए रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. ओके, अब क्या हो रहा है? सो दैट सिट्रेट इज देन isomerized to isocitrate, and it is followed by two successive steps of decarboxylation leading to the formation of alpha Kg and succinyl CoA. तो हमें पता है कि आप देख सकते हो कि आइसोसिट्रेट में से CO2 रिलीज होता है तो अल्फा Kg, और अल्फा Kg में से CO2 रिलीज होता है तो क्या बनता है? सक्सिनाइल CoA. तो ये दो सक्सेसिव स्टेप है, जो सीक्वेंस में आते हैं उसको सक्सेसिव स्टेप्स बोलते हैं. राइट, क्रम मतलब कि सीक्वेंस एक के बाद तुरंत दूसरा आता है तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव स्टेप्स. तो ये दो सीक्वेंशियल और सक्सेसिव स्टेप्स है जिसमें CO2 रिलीज होता है. ठीक है, ओके. ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है? So this succinyl CoA, succinyl CoA is oxidized to OAA oxaloacetic acid, allowing the साइकिल टू कंटिन्यू. फिर OA बनता है और साइकिल कंटिन्यू होती है. राइट, नाउ ड्यूरिंग conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized, and this is substrate level phosphorylation. सही बात है ना, जीडीपी में फॉस्फेट ऐड होता है और जीटीपी बनता है तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोडक्शन. In a
coupled reaction that GTP is converted to GDP, the simultaneous synthesis of ATP from ADP occurs, right? ADP में से क्या बनता है? ATP बनता है. ओके, याद रखना एट 3 पॉइंट. अच्छा, जब एसिटाइल को ए से बात करें, फ्रॉम एसिटाइल को ए, राइट, 3 पॉइंट्स पे क्या होता है? NAD is reduced to NADH plus H plus, and at 1 point FAD is reduced to FADH2. क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके. तो ये वेरी इजी बात थी. So the continued oxidation of acetyl CoA via the TCA cycle, which requires the continued replenishment of OAA. OAA कंटिन्यू बनना जरूरी है. और OAA क्या है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, क्योंकि एसिटाइल CoA किसके साथ यूनाइट होता है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, राइट? ओके. एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI, और क्या फॉर्म होगा? तो 3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4H प्लस 4 FADH2 प्लस ATP, राइट? और ये जो होता है प्रोसेस, ये कहाँ पे होता है? तो दिस रिएक्शन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. क्लियर? और फॉर एनर्जी प्रोडक्शन which requires regeneration of NAD and FAD from NADH and FADH2 respectively, राइट? मतलब कि इसके बाद क्या होगा? जो ETS है वहां पे NADH2 में से NAD बनेगा, FADH2 में से FAD बनेगा. मतलब कि जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तब जाके एनर्जी रिलीज होगी. और ये रीजनरेशन कहाँ पे होगा? मतलब तो ये होगा कहाँ पे? हमें पता है ETS में. और ETS कहाँ पे होती है? इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो ये मैंने आपको क्लियरली TCA साइकिल डिटेल में समझा दिया. उसको कैसे याद रखना है मैंने आपको ये भी समझा दिया, राइट? बस अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है.
होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू।